गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोग इक्विवेलेंस के डिफिनेशन तक बताए थे, इक्विवेलेंस का डिफिनेशन। और आज हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेके, खास करके टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल ले लेकर के इक्विवेलेंस रिलेशन को ठीक से क्लियर करेंगे। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था, इक्विवेलेंस रिलेशन इज ए रिलेशन which holds three special type of relation: reflexive relation, symmetric relation, and transitive relation. So a relation is said to be an equivalence relation if the relation holds reflexive property, symmetric property, and transitive property. For example, let us take an example of your textbook. Textbook is that if R, capital R, is a relation defined as member of relation will be always in order pair. So it is defined as A minus B is an integer. A minus B is an integer where AB, for all AB belongs to Z, where R is a relation over the set Z. So then, if R is a relation defined as A minus B is an integer, where for all AB belongs to Z, Z is integer. So then for reflexive condition, reflexive relation, every member of the relation should be related to itself. मतलब every member of the set Z, A is a member of integer or A should be related to itself. This is a reflexive relation. So here A minus B, it means A minus B, if A is an integer, A minus A is defined as A minus B is an integer. So A minus A, one member A is related to itself, A is related to A, or it is defined as A minus B. In place of B is again A, so A minus B, so A minus A is equal to 0. 0, obviously 0 is an integer. It means relation R holds reflexive property for over set S Z, over set Z. So from the set of Z means integer. If we select any integer, like suppose A means, suppose we select integer 2. So 2 minus 2 is equal to 0. So 0 is an integer. If we select 5 and 5, so 5 minus 5, that is 0. 0 is always integer. So wherever we select any integer from the set of integer, always difference of same integer, we will get 0. 0 means it is an integer. Always it holds reflexive property for all Z. Second,
for symmetric property or symmetric relation says that if AB belongs to, say, a relation R, which implies BA must belong to set R. This is the symmetric relation. Symmetric relation says that if A is related to B, then B is also related to A. If it holds, then we say that the prescribed relation hold symmetric property or symmetric relation. Here AB, it means, it states that AB means A minus B. Suppose it says A minus B according to the definition. A minus B, it says that A minus B is an integer. So A minus B is an integer. Now A minus B is an integer. So now BA means B minus A according to the definition. B minus A means if we collect minus 1 as a common factor, then A minus B. So since A minus B is an integer, so negative of A minus B will be also an integer. A minus B, suppose 5. So minus 5 is also an integer. So A minus B is also an integer. As if 5, 3, in place of A we put 5, in place of B 3, so 5, 3 belongs to R. So 5, 3 means 5 minus 3. So 5 minus 3 is an 2. 5 minus 3 is equal to 2. 2 is an integer. So 3, 5, BA means 3, 5. 3 minus 5 means minus 2 is an integer. So if A minus B is an integer, obviously A minus of A minus B will be integer. So a pair AB is an integer from the definition. So BA will be also an integer, but only sign will be reversed, sign will be negative. So it holds it. For every one pair that is integer, their reverse BA will be also an integer. So it holds symmetric relation too. It holds symmetric property good. So relation R holds symmetric property. Good. Now third condition, transitive relation. For transitive relation, I told you that for any set, if we select 3 members like ABC, so if A is related to B and B is related to C, which implies A is directly related to C, then we say that this relation is a transitive relation. तो इसमें ट्रांजिटिव रिलेशन में हमारा सेट है, suppose we select A, B, C belongs to Z integers. We select 3 members. हमने 3 मेंबर लिया A, B, C इंटीजर C. तो यहाँ AB means A minus B is an integer. AB belongs to Z. Z means Z cross Z, integer to integer, Z. And BC is equal to
b minus c is an integer. From the definition of relation का यही definition था, पेयर और हर एक पेयर का डिफरेंस एक इंटीजर होना चाहिए. So then a minus c AC, pair of AC, it can be written as a minus c according to the definition of relation. So a minus c can be written as a minus b plus b minus c. माइनस b प्लस b कैंसिल होगा तो बच जाएगा वही a माइनस c को लिख सकते हैं. और a माइनस b इज एन इंटीजर. तो a माइनस b एन इंटीजर plus b minus c also an integer and integer plus an integer, that is again an integer. वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा लेकिन इंटीजर होगा तो इंटीजर. इसका मतलब होगा which implies AC belongs to R. ये रिलेशन तो ये हमारा ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में आया. तो इफ ए बी सी belong to relation R, which implies AC belongs to R. ये गुण था किसका, ट्रांजिटिव का. तो ए बी दो मेंबर लेंगे रिलेशन से, दोनों आर में है तो ए का डायरेक्ट सी से होगा. ऐसा लिखेंगे इट होल्ड्स गुड मतलब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड किया. और हम जानते हैं जब कोई रिलेशन तीनों प्रॉपर्टी होल्ड किया, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तो देयरफॉर रिलेशन आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. ये मुझे प्रूव करना था. जो डिफाइंड था रिलेशन एक सेट पर, वो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है. और डिफाइंड कैसे था, तो a माइनस बी को एक इंटीजर होना चाहिए. अब एक दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं. प्रूव दैट ए रिलेशन आर defined as is similar to रिलेशन है. प्रूव दैट रिलेशन आर, और रिलेशन आर है क्या, इज सिमिलर टू ओवर ए सेट ऑफ ट्रायंगल्स. मतलब ट्रायंगल, इस सेट में सिर्फ ट्रायंगल्स है. ट्रायंगल नंबर 1, ट्रायंगल नंबर 2, ट्रायंगल नंबर 3 so on. So T is a set of triangles. Then we have to prove that relation R is an equivalence relation. मुझे प्रूव करना है यदि हमारा रिलेशन है इज सिमिलर टू और सेट है सेट ऑफ ट्रायंगल्स, तो कहना है ये आर रिलेशन जो है इक्विवेलेंस रिलेशन होगा. और प्रूफ के लिए इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, इसकी प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी प्रूफ करेंगे. रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी या रिफ्लेक्सिव रिलेशन. यहाँ पर हम जानते हैं जो कोई दो एक मेंबर लें, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ टी शुड बी रिलेटेड टू themselves. मतलब every element of the set of T is related to itself. तो A belongs to set R. तो R में होना चाहिए पेयर कहने का. और हम जानते हैं every triangle, एक की जगह हम ट्रायंगल 1 ले लिए, ट्रायंगल 1. तो ट्रायंगल 1 is similar to ट्रायंगल 1. Every triangle is related to itself. हर एक ट्रायंगल अपने ट्रायंगल का सिमिलर होता है. ट्रायंगल नंबर 1 विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल नंबर 1,
triangle number 2 will be similar to triangle number 2, triangle number 3 will be similar to triangle number 3. So every member of T का हर एक सदस्य जो है अपने आप का सिमिलर होगा, समरूप होगा. तो ये प्रूफ हो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी एक साथ संभव है क्योंकि हर एक ट्रायंगल अपने आप का सिमिलर है. तो यहाँ लिखेंगे फॉर ऑल ट्रायंगल बिलोंग्स टू टी. टी से कोई भी ट्रायंगल लेंगे वो हमेशा इसका सिमिलर होगा. तो देयरफॉर आर इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन. रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो पहला प्रॉपर्टी अच्छा से होल्ड करता है इक्विवेलेंस के लिए. सेकेंड प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक. सिमेट्रिक प्रॉपर्टी states that if AB belongs to R, which implies order pair BA should belong to R for all AB belong to set T. तो यहाँ पर हम जानते हैं here if triangle number 1 is similar to triangle number 2, if triangle number 1 is similar to triangle number 2, which implies obviously triangle 2 will be similar to triangle 1. एकदम सही है. एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल का सिमिलर है तो दूसरा ट्रायंगल पहले ट्रायंगल का सिमिलर होगा. रिलेशन हमारा यही है, सिमिलर. ठीक उसी तरह ट्रायंगल नंबर 2 इज सिमिलर टू ट्रायंगल नंबर 3 तो ट्रायंगल नंबर 3 जरूर होगा 2 के सिमिलर. तो ये इसको होल्ड किया. इसका मतलब है फॉर ऑल ट्रायंगल नंबर 1 ट्रायंगल नंबर 2 बिलोंग्स टू सेट टी. Therefore R is a symmetric relation. R is a symmetric relation. या कहेंगे it holds symmetric relation. Good. Now third property, transitive relation या transitive property. ये कहता है transitive property if A B एक पेयर B C बिलोंग टू सेट रिलेशन R, R से 2 मेंबर लिए और विच एम्प्लाइज AC डायरेक्टली बिलोंग टू R. तो यहां पर हमारा होगा 2-3 ट्रायंगल ले लेते हैं. लेट ट्रायंगल नंबर 1 इज सिमिलर टू ट्रायंगल नंबर 2 एंड ट्रायंगल नंबर 2 इज सिमिलर टू ट्रायंगल नंबर 3. तो एक ट्रायंगल दूसरे का सिमिलर है, दूसरा तीसरे का सिमिलर है, तो पहला जरूर 3 का सिमिलर है, विच इंप्लाइज ट्रायंगल नंबर 1 मस्ट बी सिमिलर टू ट्रायंगल नंबर 3. तो ए बी से रिलेटेड है, रिलेशन हमारा है क्या यहाँ सिमिलर टू. तो ए इज सिमिलर टू बी, बी इज सिमिलर टू सी, इट मीन्स ए इज सिमिलर टू सी. वो नहीं है तो ट्रायंगल नंबर 1 सिमिलर टू ट्रायंगल नंबर 2 एंड सिमिलर ट्रायंगल नंबर 2 इज सिमिलर टू ट्रायंगल नंबर 3 व्हिच इंप्लाइज ट्रायंगल नंबर 1 इज सिमिलर टू ट्रायंगल नंबर 3. ये सारी कोई भी 3 ट्रायंगल 4 सेलेक्ट करें, कोई भी 3 ट्रायंगल आपस में सेलेक्ट करेंगे तो आपस में पहला दूसरे का सिमिलर, दूसरा तीसरे का सिमिलर, तो पहला तीसरे का सिमिलर होगा. तो यहाँ कह सकते हैं फॉर ऑल ट्रायंगल नंबर 1 triangle number 2 triangle number 3 belongs to set T. So it holds in transitive property. Therefore R is a transitive relation. Hence R holds, R तीनों गुण रखता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव. तो hence R is an equivalence रिलेशन. ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा. तो ट्रांजिटिव तो हमने देखा रिलेशन हमारा है इज सिमिलर टू और सेट है हमारा ट्रायंगल. ये रिलेशन आर ओवर द सेट विल बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन. वही पहला रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी एवरी मेंबर शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ.
ए इज रिलेटेड टू ए। और उसी तरह हम सेट तो हमारा ए बी नहीं होकर के ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल नंबर 1 सिमिलर होगा ट्रायंगल नंबर 1, या ट्रायंगल नंबर 2 रहता है और ट्रायंगल नंबर 2 के सिमिलर है। उसी तरह ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होल्ड्स गुड, सिमेट्रिक में आ जाएंगे। तो यहाँ ए इज रिलेटेड टू बी विच इंप्लाइज बी मस्ट बी रिलेटेड टू ए। तो ए 1 दो ट्रायंगल ले लिया, सेट से दो ट्रायंगल, 1 2 का सिमिलर है, 2 तो 2 1 का जरूर होगा सिमिलर, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज से। तो 1 तो इसका मतलब है ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी होल्ड किया। ट्रांजिटिव में जाएंगे, ट्रांजिटिव में 3 मेंबर सेलेक्ट करते हैं एबीसी, एबीसी हम 3 मेंबर लिए ट्रायंगल 1, ए इज रिलेटेड टू बी, बी इज रिलेटेड टू सी, तो ए इज रिलेटेड टू सी। तो यहाँ केस में लिए 3 मेंबर हुआ 1 2 3, ट्रायंगल नंबर 1 सिमिलर टू ट्रायंगल नंबर 2, ट्रायंगल नंबर 2 सिमिलर टू ट्रायंगल नंबर 3। ऑब्वियसली 1 को भी ट्रायंगल नंबर 3 से सिमिलर होना है। तीनों ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होल्ड किया, तीनों प्रॉपर्टी होल्ड किया, इसका मतलब है इक्विवेलेंस रिलेशन है। थोड़ा इसी पर थोड़ा सोचे, हमारा रिलेशन आर यदि है इज कॉन्ग्रुएंट टू और सेट यही हमारा टी है, ट्रायंगल सेट ऑफ ट्रायंगल्स, वह भी इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, बिकॉज एवरी ट्रायंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। ट्रायंगल नंबर 1 विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल नंबर 1, ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल दे देंगे। ट्रायंगल नंबर 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल नंबर 2, सॉरी ट्रायंगल नंबर 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल नंबर 1। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होल्ड्स गुड। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में यदि ट्रायंगल नंबर 1 ट्रायंगल नंबर 2 के कॉन्ग्रुएंट है तो ट्रायंगल नंबर 2 1 के भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो ये होल्ड फॉलो किया, ए इज रिलेटेड टू बी तो बी इज रिलेटेड टू ए, इसीलिए आर जो है सिमेट्रिक रिलेशन भी हो गया। ट्रांजिटिव में आएंगे, पहला ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट है, दूसरा तीसरे का कॉन्ग्रुएंट है, तो पहला तीसरे का कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, इसीलिए ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड किया। तो आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, दिस आर मतलब इज कॉन्ग्रुएंट टू विल बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ओवर द सेट ऑफ ट्रायंगल्स। अब फिर हम लोग अब तीसरा एग्जाम्पल लें, prove that relation R defined as modulus of A minus B is multiple of 4 over set Z, integer suppose A and A ऑलरेडी यूज मैंने पहले ही लिख चुका हूं, इसलिए x कर देते हैं, सच दैट x स्टार्ट्स शुरू होता है 0 से इक्वल और मान लो 12 से कम है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये प्रूव करना है, ये हमारा रिलेशन है। रिलेशन इस तरह से डिफाइंड है, जो मॉडुलस ऑफ रिलेशन में जो भी मेंबर होगा ऑर्डर पेयर में होगा, तो उसका ऑर्डर पेयर का डिफरेंस का मॉडुलस हमेशा 4 का मल्टीपुल है। या ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मॉडुलस ऑफ A माइनस बी इज डिविजिबल बाई 4, 4 से कटने वाला है, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। ओवर द सेट कोई सेट दे देगा, तो यहाँ सेट जो है हमारा ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको ये प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ में ऐसा कर सकते, पहले इसको रोस्टर फॉर्म में बदलिए, तो ये Z इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 0 से स्टार्ट, इंटीजर है तो 0 1 2 3 4 ... 9 10 11 एंड 12 इतने मेंबर होंगे जब हम इसको बदलेंगे रोस्टर फॉर्म में या लिस्टेड फॉर्म में। अब Z R शुड बी द सबसेट, रिलेशन तो सबसेट होता है Z क्रॉस Z का, तो Z क्रॉस Z में मेंबर सब जो हो जाएगा ऑर्डर पेयर में, फिर Z का Z के साथ ही करेंगे,
0 0 0 1 0 2 0 12, फिर 1 से शुरू करेंगे 1 0 1 1 1 12, इसी तरह से जाते जाते 12 12 12 12। पहले वाले क्लास में बताए थे जेड हैज 12 मेंबर और जेड क्रॉस जेड मतलब 12 इंटू 12 टोटल मेंबर हो जाएंगे इसमें 144। इसमें 144 मेंबर है, लेकिन आर कहता है हमारा रिलेशन आर इज द सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड, क्योंकि रिलेशन है, रिलेशन को सबसेट होना जरूरी है, तो आर इज द सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड। लेकिन इसमें सारे मेंबर नहीं लिखेंगे, क्योंकि जेड क्रॉस जेड का कुछ सबसेट ही लिखेंगे। और ये सबसेट कैसे लिखेंगे, कहता है मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपुल ऑफ 4। इसमें कौन कौन पेयर आ जाएगा, तो 0 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 0 लिखने पर 0 0 तो 0 माइनस 0 0 मॉडुलस ऑफ 0, तो मॉडुलस ऑफ 0 0, तो 0 मल्टीपुल होगा 4 का, 0 मतलब 0 इंटू 4, तो 4 का मल्टीपुल हो जाएगा। 0 1 नहीं लिखेंगे, 0 1 नहीं लिखेंगे, 0 1 मतलब हो गया मॉडुलस ऑफ 0 माइनस 1, 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 मतलब हो गया 1 1, तो 4 का मल्टीपुल नहीं है, इसीलिए इसमें 0 1 नहीं लिखेंगे। 0 2 भी नहीं लिखेंगे, तब 0 3 नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट 0 4 लिखेंगे, क्योंकि 0 4 0 माइनस 4 मॉडुलस ऑफ माइनस 4 प्लस 4 मल्टीपुल ऑफ 4। 0 4 के बाद 0 5 0 6 0 7 नहीं आएगा, 0 8 होगा, 0 8, फिर 0 8 के बाद 0 9 0 12, इसी का डिफरेंस जो है 4 का मल्टीपुल होगा 12, तब खत्म। अब चलेंगे 1 से, 1 1 चलेगा, 1 0 तो नहीं चलेगा, 1 1 चलेगा, फिर 1 2 नहीं चलेगा, 1 3 नहीं चलेगा, 1 4 नहीं चलेगा, 1 5 होगा, 1 5 मीन्स 1 माइनस 5, तो 1 माइनस 5, तो 1 माइनस 5 माइनस 4 कटेगा, 1 6 1 7 1 8 1 9 1 9 चलेगा, फिर 1 10 1 11 1 12 नहीं चलेगा, फिर 2 से चलेगा 2 2 2 6 2 6 2 6 2 8 नहीं चलेगा, 2 8 2 10 2 10 हो जाएगा, 2 10 मीन्स 8 कटेगा, फिर 2 12 नहीं चलेगा, फिर आ जाए 3 3 3 3 3 3 बस 3 4 नहीं 3 5 3 6 3 7 3 7 3 3 11 3 11 आगे नहीं होगा, 12 से नहीं होगा, 4 4 4 4 फिर 4 9 नो 4 4 8 4 9 4 10 4 11 4 11 4 12 4 4 के बाद 4 8 भी होगा, 4 8 4 माइनस 4 8 4 12, फिर 5 5, ये बहुत सारे होंगे, 5 1 पलट के लिखेंगे, लास्ट में आ जाएगा 12 12, ये सारा, ये थोड़ा सा विजुलाइज इसलिए किए, थोड़ा समझाने के लिए, ठीक से इतना लिखना नहीं है, सीधे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे ए बी। पहला जो है, पहला है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। एग्जाम में इतना नहीं लिखना है, ये आपको थोड़ा सा समझाने के लिए, ठीक से क्लियर करने के लिए किया है, वही लिखेंगे जो 4 से मल्टीपुल है या 4 से डिविजिबल है। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में सीधे लिखेंगे, ये प्रॉपर्टी कहता है एवरी मेंबर रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो यहाँ ए में जेड, ए मतलब सेट हो, यहाँ फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड,
ए हम कहाँ से लिए, जेड से। तो यहाँ जो भी डालेंगे 0 माइनस 0 0 0 0 माइनस 0 0, 4 का मल्टीपल है 1 माइनस 1, 4 का डिविजिबल है 2 2। तो जितने मेंबर हैं 12 12 12 माइनस 12, तो यहाँ लिखेंगे जो इस केस में और ये ए मतलब हो गया ए माइनस ए मतलब 0 मतलब 0 0 मतलब 0 इंटू 4, so is a multiple of 4। तो ये तो कहता है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होल्ड किया। ये 0 ये जब भी होगा सेम का डिफरेंस हर एक का, जो मेंबर आया 0 माइनस 0 0, ये फिर 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0। तो जितने सदस्य हैं इसमें 9 माइनस 9 0, सारे मेंबर जो है अपने आप से रिलेटेड है। 0 इज रिलेटेड 0, 1 इज रिलेटेड टू 1, 2 इज रिलेटेड टू, क्योंकि ये इसको होल्ड करता है। तो लिखेंगे रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होल्ड्स गुड, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होल्ड्स गुड। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए एक प्रॉपर्टी हमको मिल गया। अब सेकेंड प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहता है यदि ए बी आर का मेंबर है, विच इम्प्लाइज बी ए को आर का मेंबर होना चाहिए और ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड। जेड से कोई भी दो मेंबर निकालेंगे, यदि ए बी इसमें है तो ये होगा। तो ए बी यहाँ जो इसमें है, जैसे मान लो 0, ये हो गया 4, ए बी 0 4 मतलब 0 माइनस 4, 4 का मल्टीपल 4 माइनस 0 होगा ही। तो इसको जनरली लिखेंगे इफ ए बी बिलोंग्स टू आर। तो ए बी मतलब हो गया क्या, ए माइनस बी का ए बी बिलोंग्स टू आर मतलब ए बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। ये 4 का मल्टीपल है ए माइनस बी। तो ए माइनस बी 4 का मल्टीपल है, हम लिख सकते हैं जो ए माइनस बी के जगह पर 4q या ए माइनस बी। मॉडुलस जब हटाते हैं तो दोनों सिंबल लिखना पड़ता है। ए माइनस बी इज इक्वल टू लिख देते हैं प्लस माइनस 4q मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4। या दिक्कत होती होगी यदि समझने में, तो एक लाइन फिर लिख देता हूँ यहाँ, मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी मतलब हो गया 4q मल्टीपल ऑफ 4, और सिर्फ ए माइनस बी लिखेंगे, मॉडुलस हटाएंगे तो प्लस माइनस 4q कर दो। अच्छा, अब नाउ बी ए लेते हैं, बी ए बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब है बी ए मतलब मॉडुलस ऑफ बी माइनस ए, बी माइनस ए। तो यहाँ पर बी माइनस ए को लिख सकते हैं अंदर में माइनस ऑफ ए माइनस बी, या ऐसा करें ए माइनस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4q। तो बी माइनस ए इज इक्वल टू, माइनस कॉमन लिया तो माइनस प्लस कर दो 4q, ये इधर। तो बी माइनस ए, बी माइनस ए को लिखेंगे प्लस माइनस बी माइनस ए
रूट जब ये मॉडुलस हटाएंगे प्लस माइनस बी माइनस ए, और ये प्लस माइनस बी माइनस ए क्या होता है माइनस प्लस 4q। तो जब इसको b माइनस ए डिविजिबल है 4q से, तो प्लस माइनस यहाँ लिखेंगे 4q। तो प्लस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ लिखेंगे मल्टीपुल ऑफ 4, मल्टीपुल ऑफ 4। ये भी 4 का डिविजिबल है। तो ए बी यदि 4 का डिविजिबल है तो बी ए भी 4 का डिविजिबल होगा। तो इट होल्ड्स सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो मॉडुलस कैसे, या माइनस कॉमन ले लो तो मॉडुलस हटेगा तो पी क्यूब। यदि ए बी आपका 4 का मल्टीपुल है तो बी ए बी 4 का डिविजिबल है, इसीलिए इट होल्ड्स सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को होल्ड किया अच्छा से। अब थर्ड को तीसरा गुण है ट्रांजिटिव रिलेशन। ये कहता है इफ ए बी सी belongs to set R, which implies AC belongs to set R for all ABC for the given set। तो इसमें ट्रांजिटिव में यहाँ क्या कहता है, सिंस ए बी और बी सी बिलोंग टू सेट आर, तो ए बी मतलब हो गया मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज ए मल्टीपुल ऑफ 4 दिया हुआ है, मॉडुलस मल्टीपुल ऑफ 4। इसका मतलब इसको लिखते हैं हम लोग 4q एंड बी सी इज इक्वल टू बी माइनस सी। यहाँ थोड़ा सा करेक्ट करते हैं, जो a माइनस बी मल्टीपुल ऑफ 4, तो सिंपल a माइनस बी इज ए मल्टीपुल ऑफ प्लस माइनस 4q। मल्टीपुल ऑफ 4 कहने का मतलब प्लस माइनस 4 इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस 4q। ये दोनों ले लिए, पॉजिटिव सिंबल और नेगेटिव में। मॉडुलस हटाया हूं, देख लेना, मॉडुलस अब नहीं है। अब फिर यह बी सी मतलब बी माइनस सी इज ए मल्टीपुल ऑफ 4। इसका मतलब लिख दीजिए 4r, 4 टाइम्स ऑफ एनी नंबर। और b माइनस सी यदि मॉडुलस हटाएंगे इज ए मल्टीपुल ऑफ 4, इसका मतलब प्लस माइनस 4r। तो अब हमको दिखना है ए बी यदि 4 का मल्टीपुल है, बी सी 4 का मल्टीपुल है, तो ए सी जो है इसका मेंबर होना चाहिए, मतलब ए सी भी 4 का मल्टीपुल होना चाहिए। तो नाउ ए सी मतलब हो गया मॉडुलस ऑफ ए माइनस सी। तो ये तो मॉडुलस ए माइनस सी, तो मॉडुलस ऑफ ए माइनस सी, तो प्लस माइनस ए माइनस सी प्लस माइनस ए माइनस सी कैन बी रिटन एज ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। ए माइनस सी अंदर में देखिए, ए माइनस बी कैंसिल, माइनस बी प्लस बी, और ये हमारा हो जाएगा प्लस माइनस ए माइनस बी क्या है, ए माइनस बी इज मल्टीपुल ऑफ 4, मतलब प्लस माइनस 4q प्लस b माइनस सी इज ए मल्टीपुल ऑफ 4 मीन्स प्लस माइनस 4r। प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हो जाएगा 4r, और प्लस माइनस कॉमन कीजिए, 4 भी ले लीजिए, q प्लस
आर, क्यू प्लस आर। तो ए माइनस सी, इसमें भी एक 4 फैक्टर है, इसका मतलब है इट इज ए मल्टीपुल ऑफ 4, मल्टीपुल ऑफ 4। तो ए बी यदि 4 का मल्टीपुल है, बी सी 4 का मल्टीपुल है, तो ए सी डायरेक्ट हो रहा है 4 का मल्टीपुल। इसका मतलब है इट होल्ड्स ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव property. So this type of relation holds all the 3 properties: reflexive, symmetric and transitive. Hence relation R is an equivalence relation, equivalence relation। इसी तरह से हम लोग को प्रूव करना है। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में कहता है एवरी मेंबर शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ। सिमेट्रिक में कहता है इफ वन मेंबर इज रिलेटेड टू अनदर मेंबर, द अनदर मेंबर विल बी रिलेटेड बाय द सेम रिलेशन फ्रॉम द फॉर्मर वन। और थर्ड कहता है इफ ए इज रिलेटेड टू बी, बी इज रिलेटेड टू सी, देन ए मस्ट बी रिलेटेड टू सी, ट्रांजिटिव। और तीनों गुण होल्ड किया तो ये हो गया आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमारे जनरली क्वेश्चन सीबीएसई में क्या होता है, जो एक क्वेश्चन आता है 4 नंबर का, कह देता है वेदर चेक दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट। तो या कहता है प्रूव कीजिए इक्विवेलेंस रिलेशन है। यदि तीनों रिलेशन सेटिस्फाई किया तो कहेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन है। तीनों में से कोई एक भी पकड़ा गया चोर जैसा जो नहीं हुआ तो कहेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। फिर एक हम लोग अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अब फिर एक एग्जाम्पल लें हम लोग। एग्जाम्पल नंबर मान लीजिए 4 होगा। तो चेक whether relation R defined as AB such that A is equal to B is equal to A plus 1, B is equal to A plus 1 over the set A with elements 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is a question of your textbook. Check whether R this much defined ऐसा है over the set A is an equivalence relation. Equivalence relation ऐसा है। तो ऐसा है तो चेक करने के लिए यहाँ पर देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिव प्रूफ। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी के लिए पहला क्या है, ए शुड बी रिलेटेड टू आर, एवरी मेंबर शुड बी रिलेटेड टू आर। तो हियर हम ले लेते हैं ए। तो कोई मेंबर लीजिए यहाँ पर 1 ये 1 शुड बी रिलेटेड टू 1। तो 1 कहता है तो कैसे हो जाएगा 1, बी इज इक्वल टू ए प्लस 1। तो ए तो है 1, अब बी हो जाएगा क्या, बी 1 प्लस 1 2। तो 1 इज नॉट रिलेटेड टू 1, यहाँ 1 लिए तो इसका है डिफिनेशन के अनुसार चलेंगे, बी के जगह हो गया ए प्लस 1। यदि हम लेते हैं 2 मतलब हो गया क्या, एक मेंबर ए इज इक्वल टू 2 और बी की जगह 2 प्लस 1 3। तो यहाँ लिखेंगे जो हियर ए डज नॉट बिलोंग टू आर। कोई भी ए जो है आर में कहता है एक मेंबर को एक से होना चाहिए, हर एक मेंबर को अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए, लेकिन यहाँ करेंगे तो एक बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ 6 है तो 7 हो जाएगा, 2 है तो 3 हो जाएगा। कोई भी मेंबर अपने आप से रिलेटेड नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड,
नहीं पकड़ता है। और सेकेंड सिमेट्रिक प्रॉपर्टी बार बार क्या लिखेंगे, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी वही है, ए बी यदि है आर में तो बी ए को भी आर में होनी चाहिए। लेकिन यहाँ क्या होता है, ए बी कोई दो मेंबर ले लीजिए, मान लीजिए हम ले लेते 3 and 4, तो 3 4, तो ये कैसे हो जाएगा, 3 अब बी की जगह 3 + 1 एक बढ़ा के लिखेंगे, 3 4 तो जरूर आर में है, लेकिन 4 और 3 इसका पलट ए बी पलटेंगे, तो 3 4 ठीक है, पहला वाला जो है वह एक ए से ज्यादा है, कहता है ए बी जो है ए से एक ज्यादा है, ए जितना लिखेंगे तो बी यहाँ 4 है, ए 3 या 3 से एक ज्यादा है, लेकिन यहाँ तो नहीं है, बी को होना चाहिए ज्यादा ए से, यही ज्यादा है, मतलब होल्ड नहीं किया, इसका मतलब है ये इसका मेंबर नहीं है। 3 4 तो आर में है, लेकिन 4 3 आर में नहीं है, तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड। इक्विवेलेंस में एक भी पहले ही फेल कर गया तो कह देंगे यह इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। लेकिन थोड़ा और एक एक करके हम इसलिए कर रहे हैं, हो सकता है ये कहेगा प्रूव कीजिए कोई एक हो रहा है दो नहीं हो रहा है, इसीलिए ट्रांजिटिव में थर्ड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये कहता है जो ए बी और बी सी belong to R, which implies AC belongs to R। तो यहाँ पर हमारा हम ले लेते हैं 3 4, ये B से एक कम है या B एक से ज्यादा है, और यहाँ ले लेते हैं मान लीजिए 5 और 6, यहाँ भी B भी यहाँ A से एक बड़ा है, एक का ही डिफरेंस है, तो ये दोनों मेंबर तो होल्ड करता है आर में, आर कहता है इसका जो ऑर्डर पेयर होगा, दूसरा मेंबर पहले मेंबर से एक ज्यादा है, चलो भाई 4 3 से एक ज्यादा है, 6 भी 5 से एक ज्यादा है, ये तो है, लेकिन यहाँ पर बट डायरेक्ट देखिए 3 6 में 6 तो सिर्फ 3 से एक ही ज्यादा नहीं है, 3 6 में 3 का डिफरेंस है, एक का डिफरेंस नहीं है, इस समय एक का डिफरेंस कहता है एक का ही डिफरेंस होना चाहिए, 3 4 5 6, लेकिन एक का जब डायरेक्ट सी से करेंगे तो डिफरेंस 3 आ रहा है, इसका मतलब है वह इस ग्रुप में नहीं है, रिलेशन में नहीं है, इसका मतलब ट्रांजिटिव डज नॉट होल्ड, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी does not hold, hence it is not an equivalence relation, इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। यहाँ तो एक भी तीनों में से कोई नहीं सेटिस्फाई करता है, तीनों में से एक भी फेल करेगा तो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, ये तो तीनों नहीं होल्ड करता है, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, लिखेंगे ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। तो इस तरह से जरा सा एक एनसीईआरटी की बुक जो है जरा सा हम बताता हूँ, ये हमारा एक रिलेशन है जो इज लेस देन, रिलेशन है लेस देन, और सेट है मान लीजिए नेचुरल नंबर, सेट इज ए नेचुरल नंबर, आर एन होगा नेचुरल नंबर, आर हो गया इज लेस देन, तो इसमें रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहता है एवरी मेंबर शुड बी लेस देन इटसेल्फ, तो कोई नंबर कोई नेचुरल नंबर अपने आप से कम नहीं होता है, 1 1 या 2 2 वह आर में बिलोंग नहीं करेगा।
नहीं करेगा, इसलिए कोई नंबर अपने आप से छोटा नहीं है, इसीलिए वह हो गया लेस देन। लेस देन हमारा रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं किया। सिमेट्रिक कहता है यदि एक मेंबर दूसरे मेंबर से छोटा है तो दूसरे को भी पहले से छोटा होना चाहिए। तो सेट है हमारा नेचुरल नंबर। हम मान लीजिए दो नेचुरल नंबर लेते हैं 4 और 5। इफ 4 इज लेस देन 5, इज 5 लेस देन 4? नो। 5 यदि 4 5 से छोटा है तो 5 4 से छोटा नहीं होगा। नहीं होगा मतलब ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी होल्ड नहीं किया। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहता है एक मेंबर दूसरे से छोटा है, दूसरा तीसरे से छोटा है, तो जरूर पहला मेंबर तीसरा से छोटा होगा। इसका मतलब थोड़ा सा एग्जाम्पल, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लें। 1 इज स्मॉलर देन 3, बात सही है। 3 इज स्मॉलर देन 5, तो 1 का 5 से डायरेक्ट रिश्ता करेंगे तो 1 इज लेस देन 5। तो इसका मतलब ऐसा हो गया, तो ये जो रिलेशन है लेस देन का ओवर द सेट नेचुरल नंबर होल्ड्स ओनली ट्रांजिटिव रिलेशन बट डजंट होल्ड रिफ्लेक्सिव, नाइदर होल्ड रिफ्लेक्सिव नॉर होल्ड सिमेट्रिक। ये लेस देन का हो गया। फिर ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए रिलेशन हमारा है इक्वल टू, रिलेशन है इक्वल टू और सेट है नेचुरल नंबर। तो इसमें क्या होगा, एवरी मेंबर इज इक्वल टू इटसेल्फ, हर एक मेंबर अपने आप का इक्वल है। तो इसका मतलब है वह रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होल्ड किया। जैसे 5 इजकल टू 5, 6 इजकल टू 5। और सिमेट्री कहता है इफ x इज इक्वल टू y या a इज इक्वल टू b, तो b मस्ट बी इक्वल टू a। यदि a b का इक्वल है तो b भी a के इक्वल होगा। तो ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी होल्ड किया। तीसरा है ट्रांजिटिव कहता है इफ a इज इक्वल टू b और b इज इक्वल टू c देन a मस्ट बी इक्वल टू c, a भी c का इक्वल होगा। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी हो गया। तो ऐसा रिलेशन कैसे डिफाइंड है, इज इक्वल टू, और सेट क्या है नेचुरल नंबर या होल नंबर है। तो होल नंबर है तो सेट पर डिपेंड करता है, तो कहेंगे ये रिलेशन इक्वल टू इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। एक रिलेशन देखिए और ले, मान लीजिए रिलेशन है हमारा इज ए फादर ऑफ, रिलेशन है इज ए फादर ऑफ, और सेट है हमारा जो फैमिली, एक फैमिली ऑफ मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स। तो उसमें मेल फीमेल सब है, फैमिली ऑफ मेंबर्स, बहुत सारे मेंबर्स हैं, लेकिन उसमें क्या है हर एक मेंबर को उस रिलेशन से सम ये रिलेटेड होना चाहिए। तो रिलेशन इज ए फादर ऑफ में कोई मेंबर एक सेलेक्ट कीजिए, मान लीजिए राम इज ए फादर ऑफ राम, बात तो सही नहीं है, गलत है। इज राम इज फादर ऑफ राम, बात गलत है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं किया। सिमेट्रिक में इफ राम इज ए फादर ऑफ लव, इज लव फादर ऑफ राम, नहीं, पलटने के बाद सही नहीं हुआ। इसका मतलब है जो राम यदि लव का फादर है तो लव भी राम का फादर नहीं होगा। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी नहीं किया, रिफ्लेक्सिव भी नहीं किया। ट्रांजिटिव क्या हो गया, इफ दशरथ इज अ फादर ऑफ राम, राम इज अ फादर ऑफ लव, इसका मतलब है दशरथ लव का फादर है, डायरेक्ट नहीं है, वह ग्रैंड फादर है। तो ये इज ए फादर ऑफ जो है ये भी हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। इसमें तीनों प्रॉपर्टी होल्ड नहीं किया, ना ही रिफ्लेक्सिव, ना ही सिमेट्रिक, ना ही ट्रांजिटिव। इस तरह से हम लोग इसको प्रूव करते हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए।